Good morning everyone. Today we are here with your another video of the chapter The Delhi Sultanate. In the previous video we read about Tughlaq dynasty and how it came to an end, and in this video we'll know about Sayyid dynasty and how it started. So your Sayyid dynasty started in 1414 and ended in 1451 CE. It was the fourth dynasty of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate को जितने भी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था उनमें ये सैयद डायनेस्टी फोर्थ डायनेस्टी था एंड इट वाज रूल्ड बाय 4 रूलर्स. ये सैयद डायनेस्टी को 4 रूलर्स ने रूल किया था. फर्स्ट वन वाज योर खिज़र खान. ही रूल्ड फ्रॉम 1414 to 1421 CE. Second one was your Mubarak Shah and he ruled from 1421 to 1434 CE. Third one was your Muhammad Shah and he ruled from 1434 to 1443 CE. And fourth, the last one was your Alam Shah and he ruled from 1443 to 1451 CE. So let's see how Sayyid dynasty started. When Timur invaded India, Khizr Khan, a Sayyid from Multan, joined him. In the previous video I told about Timur. Who was he? He was a Mongol ruler of Samarkand and he was very brutal. He invaded India because he was attracted by the wealth of India. India के wealth से तिमूर बहुत attract हो गया था. So he invaded India with the intention of looting India. इंडिया के सारे वेल्थ को लूटने के लिए उसने यहाँ पे इन्वेड किया था. So during the invasion of Timur, your Delhi Sultanate was under the control of Tughlaq dynasty. जब तिमूर इन्वेड कर रहा था इंडिया को तो दिल्ली सल्तनत was under the control of Tughlaq dynasty. So Khizr Khan, who was a Sayyid of Multan, he helped Timur in invading India. So after invading, Timur appointed Khizr Khan as a governor of Multan and Lahore. तिमूर ने जब इंडिया इन्वेड कर लिया, आफ्टर दैट ही अपॉइंटेड खिज़र खान को उन्होंने एज अ गवर्नर मुल्तान और लाहौर का गवर्नर अपॉइंट किया था. मुल्तान टुडे इट इज़ नोन एज पंजाब. सो आई टोल्ड यू तिमूर he was very brutal and his main motive intention was to rob all the wealth of India. उनका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ही रूल इंडिया. उनको रूल नहीं करना था इंडिया का जो भी वेल्थ था उसको छीन के लेके जाना था वापस. सो व्हेन ही वाज सक्सेसफुल, व्हेन ही सक्सीडेड इन हिज प्लान, ही लेफ्ट इंडिया एंड बिफोर लीविंग इंडिया व्हाट ही डिड, ही अपॉइंटेड खिज़र खान एज द गवर्नर. सो व्हेन ही लेफ्ट इंडिया आफ्टर तैमूर के इंडिया से चले जाने के बाद दौलत खान ही टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, बट खिज़र खान ही conquered Delhi again and started the rule of Sayyid dynasty in 1414. So this is how your Sayyid dynasty started in 1414 CE. So let's know about Khizr Khan. Khizr Khan, he started his rule from 1414 and ended in 1421 CE. He was the founder of Sayyid dynasty. As he was the first ruler of Sayyid dynasty, he was also the founder of Sayyid dynasty. He was known for his tolerance and humility. उनको उनके टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी के लिए जाना जाता था. वाई? बिकॉज ही हैड नो ऑब्जेक्शंस. उनको किसी के भी ऑर्डर और आइडिया से कोई ऑब्जेक्शंस नहीं था. ही वॉज वेरी टॉलरेबल. जो नोबल्स और उलेमास जो भी ऑर्डर करते थे दैट वॉज ही वॉज फाइन विद एवरीथिंग. ही वॉज ओके विद दैट. नाउ आफ्टर खिज़र खान, his son Mubarak Shah ruled and he ruled from 1421 till 1434 CE. He was son of Khizr Khan. Mubarak Shah, he was son of Khizr Khan. So he was a man of great vision. Mubarak Shah को man of great vision कहा जाता था because he was man with his own vision and own ideas. He was capable of taking his own decisions. वो किसी के अंडर में या किसी की बात सुन के अपने decisions नहीं लेते थे. उनको जो सही लगता था, whatever he felt like, he used to decide according to that. Nobles were against him. So this is the reason why nobles were against him. I told you तुगलक डायनेस्टी में nobles powerful हो गए थे. After that, Khizr Khan के टाइम में भी they were powerful, but when the ruling period of Mubarak Shah, when Mubarak Shah came to the throne, he ascended the throne, he didn't listen to them. वो नोबल्स या उलेमास के कहने पे कुछ भी डिसीजंस नहीं लेते थे. ही यूज टू टेक हिज ओन डिसीजंस. ही हैड हिज ओन विजन्स. जो नोबल्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उनको बिल्कुल ये चीज़ दे वर नॉट एक्सेप्टेबल. इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय देम. So they kept revolting against him.
सो जो द बिगिनिंग का जो 13 ईयर्स वट एवर टिल 13 ईयर्स ही रूल्ड ओवर, पूरा टाइम मुबारक शाह का उनके इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में ही चला गया था। इनका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशंस ये इंटरनल रिवोल्ट्स जो नोबल्स के थ्रू हो रहे थे या फिर जो भी लोग इनके अगेंस्ट थे, उन्होंने जो रिवोल्ट्स किया था उनको सप्रेस, उनको दबाने में, उनको ख़त्म करने में ही चला गया। ही कुडंट पे अटेंशन मोर रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ हिज सैयद डायनेस्टी। वो अपने डायनेस्टी को एक्सपैंड नहीं कर पाए। आफ्टर हिम मुबारक शाह became the ruler. Muhammad Shah became the ruler. Mubarak Shah के बाद Muhammad Shah he came to the throne, he ascended the throne and he ruled from 1434 till 1443 and he was a nephew of Mubarak Shah. Muhammad Shah Mubarak Shah के nephew थे. He was weak and incompetent. मुहम्मद शाह जो थे वो बहुत ही वीक और इनकॉम्पिटेंट रूलर थे. अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग एंड रिवोल्ट्स ही ऑल्सो हैड टू डील विद इंटरनल रिवोल्ट्स. बाहर से जो भी अपराइजिंग और रिवोल्ट्स हो रहे थे उनको तो वो कंट्रोल कर ही रहे थे. ही हैड टू लुक आफ्टर दैट बट इट वॉज नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय हिम. वो सब कुछ स्मूथली मैनेज नहीं कर पा रहे थे. ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. उनसे चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही थी बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी एफिशिएंट. सो बाहर के रिवोल्ट्स के साथ साथ उनको अपने इंटरनल रिवोल्ट्स पे भी डील करना पड़ रहा था. इंटरनल रिवोल्ट्स को भी सप्रेस करना पड़ रहा था. ही वॉज नॉट गेटिंग एनी कॉपरेशंस विद हिज किंगडम पीपल. उनको अपने किंगडम पीपल से कोई कॉपरेशंस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू कॉन्कर मैनी ऑफ द प्लेसेस. इन्होंने भी अपने टाइम में कोई बहुत बड़ा कॉन्कर ऐसा कुछ कॉन्क्वेस्ट नहीं किया. नाउ आफ्टर मुहम्मद शाह द लास्ट रूलर वॉज योर आलम शाह. सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे दैट वॉज योर आलम शाह. ही वॉज सन ऑफ मुहम्मद शाह. वो मुहम्मद शाह के सन थे एंड ही वॉज सेम लाइक हिज फादर. ये भी बहुत वीक और इनकम्पिटेंट रूलर थे. यू कैन सी दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. वो बिल्कुल भी रूल करने में दिल्ली सल्तनत को इंटरेस्टेड नहीं थे. हिज रूलिंग पीरियड वॉज 1443 till 1451. सो व्हाट हैपेंड, आलम शाह ही वॉज ऑल्सो अनेबल टू टेक द कॉपरेशंस. इनको भी लोग कॉपरेट नहीं कर रहे थे. ही हैज़ ऑल्सो टू फेस द सेम रिवोल्ट्स, इंटरनल रिवोल्ट्स एज वेल एज द रिवोल्ट्स फ्रॉम आउटसाइड हिज किंगडम ऑल्सो. सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू गिव अप द थ्रोन. इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना थ्रोन गिव अप कर देंगे. इनको किसी ने फोर्स नहीं किया था, इनको किसी ने हराया नहीं था. ही हिमसेल्फ gave up his throne. इन्होंने अपनी गद्दी खुद ही छोड़ दी थी अपनी मर्जी से, which was very favorable for your बहलूल खान लोधी. क्योंकि कोई वॉर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वेरी ईजिली बहलूल खान लोधी ही गॉट द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत. उनको बहुत आसानी से दिल्ली सल्तनत मिल गई थी. सो आफ्टर गिविंग अप he decided that he'll go to Bardwan and settle there. Who decided? Alam Shah. He decided that वो Bardwan चले जाएंगे and he'll leave there. So he did the same. He gave up his throne to Behlul Khan Lodi and after handing over the throne, he went to Bardwan and he lived all his life, all his life there. So that's all. That's how your Sayyid dynasty came to an end. And that was your arrival of your Lodi dynasty. So that's all for today. In the next video, we'll know about your Lodi dynasty. Thank you.